जो बिगिनर है उसको आप क्या सजेशन दोगे और कैसे एक बिगिनर को अपने बिजनेस को इनिशिएट करना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में? वो कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, टीएनसी नहीं है, आपको उस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप खुद करो या आप टेक्नीशियन रखो, बट यू हैव टू हैव फुल नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। सो जो कल को अगर क्लाइंट आपको आके कुछ पूछ रहा है, यू शुड हैव द आंसर, नॉट द टेक्नीशियन। At the age of 22, where everything was happening, I got married. Actually, वो peak time था to pursue my dream or something like that. I got married. But then things didn't work out. So at the age of 23, I had to get separated from my partner. क्योंकि देखो क्या होता है ना, ज्यादातर फीमेल्स को वेंट आउट करनी होती है चीजें, and they only want a good listener there, कि तुम सुनो मेरा। तो इसमें क्या है ना, नारी वो अबला नारी कि अब तो ये रास्ते पे गिर गई, नहीं, अगर तुम ऐसे देख भी रहे हो ना, तुम सिर्फ बोल रहे हो, उठाने नहीं आ रहे हो हमें। एक ऐसा कोई वर्स्ट डे जो आपने फेस किया हो कि भाई ये मेरी लाइफ का वर्स्ट डे है? So there was a time जहाँ पे I had no one in Davichi. My technicians ran away without informing me. नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दाविची स्टूडियो की फाउंडर ऐश्वर्या। आज हम सिर्फ उनके बिजनेस के सक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन अनफिल्टर्ड बातों पर भी डिस्कशन करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है, चाहे वो एज अ फीमेल बिजनेस रन करने के चैलेंजेस हो या अकेले ही अपने ड्रीम पर काम करने के इम्पैक्ट। शी हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन बोथ। शी इज पैशनेट बिजनेस वुमेन एंड रन्स हर ओन नेल स्टूडियो इन कोरेगांव पार्क। अब हम जानेंगे हाउ शी हैज स्टार्टेड एंड हाउ शी रन्स हर बिजनेस। So we welcome Aishwarya. So Aishwarya, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. तो कैसा चल रहा है बिजनेस? बढ़िया चल रहा है बिजनेस। ओके, अगर मैं आपको इनिशिएट करूं तो आप अपने बिजनेस के बारे में एक बेसिक एक इंट्रो दे सकते हो तो इफ यू कैन। हाउ यू आर डूइंग, कैसे आप बिजनेस करते हो, कहाँ से शुरू किया, छोटी छोटी चीजें। Okay, so let's start with the name itself. ठीक है, so Davichi, it means shining over everything. It's a perfect name for a nail studio, I feel, because your nails have to shine every time. Okay. And I was inspired by this name. So there's this Korean drama called Crash Landing on You, for all the K-drama lovers out there. And there's a song, Sunset. Okay, so there are two singers in it. तो वो सिंगर के डिओ का नाम है दाविची. So it was always on my playlist on YouTube, like Sunset by Davichi, Sunset by Davichi. And one day I just, the name always stuck in my mind. So one day I just Googled, like, what does it mean? And it says shining over everything. Okay. So, yeah, so that's how I decided that my studio should have a name, something like this, and that's going to be Davichi. So, yeah, that's what Davichi is. It's a nail studio. तो ये कब आपने स्टार्ट किया? We started in 2024. It will be almost 2 years now in August. Okay. We started in August 2024. 30th August we started. अच्छा. Yeah. और उसके पहले का अगर मैं जर्नी जानना चाहूँगा, हाउ यू मतलब आफ्टर कॉलेज इफ आई कैन कनेक्ट और मे बी इफ यू। Okay, so I have a very interesting story. Let's say that way. So after college, everyone is very, ambitious कि मुझे ये करना है लाइफ में, वो करना है. Everyone is like pursuing their careers, choosing what they want to do and everything. And we were just about 21, 22. Graduation वगैरह, I did my commerce and I did my post graduation in fashion. So we also like, कि अभी next क्या करना है, ये वो, we have to do this and that. At the age of 22, where everything was happening, I got married. Okay. Yeah. As everyone is happy when they're getting married and all, so I'm not complaining about that. But yeah, जब मेरे actually वो peak time था to pursue my dream or something like that, I got married. But then things didn't work out. So at the age of 23, I had to get separated from my partner. And then again, I was very lost. But then, thank you to my parents. They were always there for me. And they stood by me forever.
And yeah, then after that, I decided to move on. I gathered all my courage because I don't want it to be like that person, abla nari bichari, abhi kya karegi ye kinds. And so I was like, okay, let me do something in my life. So I was working for a salon. I was managing a salon, okay, in Koregaon Park. And I got 2 years of good experience there. And then one of my friends suggested that let's start something, since you know so much of nails. So basically there's a small this thing in it that I wanted to have my own menswear brand. Because I've done fashion, so Okay. I always wanted that. But for some reason, so nail studio was never in the plan. But for some reason, this friend of mine was like, no, my boyfriend will invest, you just do it. Okay. So we had meetings, we finalized the place, everything. But the main agreement part, we couldn't come on the same page. Okay. So yeah, so that plan dropped. So my parents were like, it's okay. You तो- still want to do it, right? जो आप बता रही हैं कि आप मेंस वेयर में थी, हाँ जी. हाउ यू हैव एंटर्ड इन दैट? So basically, I have worked for a designer also. I was an assistant designer for a designer in Pune itself. I feel like in designing, men's wear is quite interesting than women's wear. अच्छा. Yeah. Seriously? It's simple and it's sorted. Okay. Yeah, so you don't have to use a lot of, your energy explaining everything to everyone. Men's things are sorted, so, भाई हम इतने सिंपल हैं यार. nahi. ठीक है. Yeah, but yeah, that's why I had that thing. So I used to design a lot for my brother and everything. So yeah, I was quite interested in menswear, and I really Okay. wanted to have one. तो अगर if you get any opportunity Yeah, to I won't design, mind. I really won't mind because Okay. it's really easy. क्योंकि देखो ज्यादा कुछ पैटर्न्स होते नहीं है. लड़के अतरंगी कपड़े पहनते नहीं है. एक उनका बेसिक सिलुएट चाहिए होता है. कुछ इधर उधर से कर दो, हो गया. seriously. So बताओ, आप एज अ मेल, डू यू हैव लाइक हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ शेरवानी, या फिर नहीं, उसका ऐसे नहीं, कट नहीं, होना नहीं। चाहिए, वैसे होना मैंने चाहिए? ये पूरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ लड़कियों में देखी है. ठीक. सो या हाँ, ऑब्वियस ही बात है. मेंस एक्चुअली हम लोग उतना केयर नहीं कर पाते नहीं कर शायद, पाता. और ये हमारी बचपन की अपब्रिंगिंग एंड है. इट इज वेरी इजी टू कन्विंस अ मेल बाय अ फीमेल दैट सर आप पे बहुत अच्छा बहुत लग अच्छा रहा है, है. ट्रस्ट मी. अगर कोई बोल दिया उतना ही काफी है हमारे लिए. हाँ. वैलिडेशन कैन मेक माइंड. Yeah. ठीक है. पर हाँ, मैं लड़कियों का देखा हूँ कि भाई बहुत सारी चीजें भी आप बोल दो ना कि अच्छा दिख रहा है, तो भी दे विल नॉट गेट They're never satisfied. हाँ, ठीक है. सो आप डिजाइनिंग से फिर आगे बढ़ती हैं, बट डिजाइनिंग इज टोटली डिफरेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज टोटली Yeah, डिफरेंट. but again, that's what I'm saying. If you're a creative person, sky is the only limit. देखो, मैं फैशन में क्या कर रही थी? I was always around colors, patterns. Same thing, I have to put my brains on nails. ओके. So nails में main, my core is like, of course, quality is so important, but what different I can give people with good finish. Same as clothes, right? ओके. So yeah, it wasn't that difficult for me because I had color knowledge, I had Okay. complexion knowledge, I had everything with me. अच्छा. Yeah, तो मतलब अपनी एनर्जी को एक दूसरे स्ट्रीम में स्ट्रीमलाइन किया आपने. बस. व्हाई डोंट यू पिक मेंस वेयर, और मतलब उस टाइप का एक सेगमेंट क्यों नहीं आपने, या फिर उसकी रिटेल शॉप, या फिर क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. हाँ, तो Yeah. एज फार एज And I इन्वेस्टमेंट come from a very simple middle class family. ठीक है. So yeah, इसलिए loans and everything. So और उस सिचुएशन में यू गॉट सेपरेटेड. separated, yeah. बहुत सारे प्रेशर्स अलग चल रहे थे मेंटल. तो हाउ यू हैव कम अप विथ नेगेटिव सिचुएशंस, और अभी यू आर टू मच पॉजिटिव एंड यू आर हैविंग ग्रेट ऑरा राइट नाउ. वो कैसा इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे So आया? क्या हुआ ना, जब मेरा सेपरेशन पीरियड चल रहा था, it was COVID. So I had no one to talk to it about. ठीक है. B, even I have to cry, I cannot cry. So it was all self-learning, that how I have to portray myself, because I can't cry in front of my parents, right? They'll get disturbed. So I had to be very calm from within. So that time actually, taught me, I won't say it made me stronger, it made me more wiser to look at things.
for your own self. Yeah, for my own self. Like everything happens for a reason. Maybe this was destined for me and it's happening, but it doesn't mean that life is going to stop right now. Something better is written for me, and that's exactly what happened. Okay. Okay, it took time, but eventually it happened, right? Okay. So yeah, and also I met amazing people through this journey. I even met very bad people, you know. Okay. But I've concentrated on the good part. Like I met good people also, and they changed my perspective towards life. Okay. Like this is not the end. There are many things and everything. So yeah, meeting new people was also very good exposure for me, Okay. and my way of thinking also. Okay. तो ये डिसीजन कब आया कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी? आप जॉब कर सकते थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि इट्स नॉट क्वाइट हेल्पिंग, तो आप जॉब या फिर कोई एक एटलीस्ट अपने आप को स्टडी इनकम, फिर देन वी कैन गो फॉर द बिजनेस. Exactly, that's what I'm saying. That nails was never in plan, but चीजें ही ऐसी हुई कि I was working for a salon, so I had an idea and had quit because see, आप मैनेज करके आपका ग्रोथ क्या है? You cannot grow in a salon, right? मैनेजर के ऊपर क्या पोस्ट है? How can I, you know, be more creative? I cannot. और एज अ मैनेजर मुझे बस क्लाइंट्स करना है और उनको सजेस्ट करना है, बट व्हेन आई एम अ बिजनेस वुमन आई हैव टू लुक आफ्टर एवरी सिंगल थिंग. ओके, तो आप कह रहे हैं कि यू हैव अ एक्सपीरियंस आल्सो टू रनिंग अ सैलून या आफ्टर दैट ऑल द सिचुएशन. या ओके, तभी आप इस बिजनेस में एंटर बिजनेस करते में हैं. एंटर कर पा रहे देन इट्स फेयर इनफ कि भाई मैंने एक एक्सपीरियंस ले लिया. या प्रॉपर एक्सपीरियंस. इट्स जस्ट दैट कि वो जब मैंने जॉब छोड़ा, देन आई वाज लाइक ओके, लाइक आई हैव माय, बट माय इनिशियली माय स्ट्रॉन्ग फॉर्टे वाज द फैशन. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई विल डू फैशन पैशन पे ही कहीं ना कहीं I wanted to do something, but then this opportunity came like magic only, I would say. Okay. And it happened very quickly. Like May we were discussing this, but in May only we understood that this is not going to work out. June my parents were like, no, let's take a loan, let's do it, because सब कुछ सामने था. सो मतलब देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में योर पेरेंट्स वुड बी योर एवरीथिंग, Yeah, they're my heroes. है ना? क्योंकि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी एक हेल्प पर्सन मिल जाता तो यू कैन, पर ऐसा कोई पर्सन मिला नहीं. एंड पेरेंट्स ने ऐसा पार्ट रोल, मतलब एक ऐसी जगह अपना वैल्यू क्रिएट किया कि वो अब लाइफ लॉन्ग कनेक्शन वो तो रहता ही है, बट ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना Yeah, is totally and that too, different. like let's be honest, for women it's not easy. ठीक है, सो वो एक हार्श रियलिटी नहीं, भी अभी है. आप उस पे भी आएंगे, अभी Yeah, एज अ so- वुमन बिजनेस वुमन पे भी आएंगे. हाँ, तो पर मेरे पेरेंट्स लाइक दे आर लाइक they're there for me, like you know I can crib about anything everything to them and they're still there for me, like it's okay. So they guide me always. ऐसा. That's great. So that's how the Avicii happened. Okay. But yeah, the Avicii happened in a very so a nice way, but initially there were also a lot of struggles and everything. But yeah, So how much money you have taken और किस तरीके से आपने इस बिजनेस को इनिशिएट किया? so we took a loan, Okay. almost around 15-16 lakhs Okay. against gold. Okay. Yeah, and then we had a place. So basically, it was a pet salon. Pehle. It was in a very, very, very bad condition. ठीक है. अच्छा. Yeah, so I was so sure that right from the tiling and everything, I have to change. Okay, so Achha. yeah, and my brother is also from a graphic background. So we Achha. never hired any interiors or anyone. So it was only So me and he's him. also in a creative field. Yeah, creative film. So काफी Da Vinci's creative logo, yeah, so Da Vinci का logo वगैरह सब उसने ही बनाया है. Okay. And then we decided on the design and everything. फिर vendors ढूंढो, carpenters ढूंढो, painters ढूंढो, Interior everything. designers and all. No, we didn't hire interior designers. We अच्छा. so the best part was that we both were on the same page. हमारा vision बहुत clear था. कि मैं उसको एक डायरेक्शन दे रही थी एंड he could see the direction even if he couldn't picturize it or put it on paper, but वो कर ले रहा है. हाँ, जो मैं बता रही थी ना वो समझ पा रहा था. Like you won't believe, like Da Vinci में there's a moon curve, वो भी मैंने खुद अपने हाथों से वो ड्रॉ किया है. हमने इतना, I used to be there every single day while the work was going on for 2 months till it was, you know,
already, like lamination, saman Okay. offloading वगैरह. So it was quite a journey. It was actually giving birth to a child. It was that. हाँ, वैसी बात है, business. Yeah. So yeah, that was it. But finally, it turned out to be a ठीक है। beautiful place. तो अब बिजनेस करते हुए आपको एटलीस्ट 2 साल हो गए, Almost अभी 2 साल हो ऑलमोस्ट कोरे जाएंगे. को, ठीक है। हाउ यू सी द बिजनेस? बिजनेस इज ऑलवेज इन अ टॉप और इट गेट डाउन ऑल्सो, या सीजन ऑल्सो, कि भाई बिजनेस होता क्या आपकी इंडस्ट्री में, नॉट टॉकिंग डिफरेंट, तो वो कैसा रहता है? देखो, नेल्स तो इज वेरी सीजनल, ठीक है. अच्छा, तो श्रावण महीने से अगस्त वगैरह से till December, Jan, it's good because it's a wedding, people are going on vacations. Again in like May it starts because again May में थोड़ा सा होता है, but mostly off seasons are June, July, August, बारिश. No one wants to get out of the house. And then yeah, February, March, April because again बच्चों के एग्जाम्स रहते हैं, ये वो. So it is a seasonal business, but what I feel is like not for only nails, but every business works very nice for first year. Like I don't remember like an off season for my business in first year. It was rocking, but then starts the survival. ओके, Because क्या होता है, आप एक साल नए हो तो First year. सबको वो होता नया है taste कि चाहिए। मुझे ट्राई करना है. You're giving offers, everything. And people are going crazy. वो such a cute place, influencers, ये वो सब होता है. बट आपके साथ साथ भी और बिजनेसेस हो रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपने अकेले ने बिजनेस खोला है. विद इन 6 months there's another place opening up. उसके 2 महीने बाद एक और जगह खुल रही है. सो पीपल वांट्स टू एक्सप्लोर, तो हम उसमें उनको तो रोक नहीं सकते. फिर सर्वाइवल चालू होता है आफ्टर 1 year. तो मतलब इस बिजनेस में भी कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि बहुत पिकी है बहुत किया. ना, आज जिसको पिक करेगा फिर उसके बाद चेंज करके वो शिफ्ट होगा. आई फील इट्स मोस्टली ऑन कनेक्शंस. अच्छा, या तो व्हाट डू यू नो, मतलब आप इसको मतलब कितना जान पाए हो? So basically, 2 years I've been like working for a salon. Now it's what like 2026. So मेरा हो गया, काफी एक्सपीरियंस हो गया. 2022 से मैं इस फील्ड में है. तो मुझे ना कोरेगांव पार्क का एक टारगेट ऑडियंस, मुझे पता है मेरा ऑडियंस क्या है. क्या ऑडियंस? I know what kind of people are walking in. ओके, व्हाट काइंड ऑफ, बट एक्चुअली फॉर आवर ऑडियंस आल्सो मैं बताना चाहूंगा कि कोरेगांव पार्क पुणे का एक सबसे पॉश इलाका है. Exactly. मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, And very smart इलाका है. हाँ मतलब बहुत स्मार्ट लोग. हाँ, मतलब अगर कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इट्स ओनली रिच और यू नो पैसे क्लास के लोग, बट वो है कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट भी आ रहा है ना, देन नो, यू कांट मेक अ फूल आउट ऑफ दैट. हाँ, क्योंकि कोरेगांव पार्क ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इंडिया में, मतलब नॉट इंडिया, इन महाराष्ट्र ऑल्सो people used to come from outside, Yeah. not in India. I have clients who travel from Kolhapur. I have clients who travel from Bombay. I have so many clients coming out of like Pune also. Overseas also. Yeah. Overseas. I have an Australian client. हाँ, तो मैं Yeah. क्योंकि एक्चुअली उसके पीछे एक रीजन भी है, ओशो आश्रम भी है वहाँ पर. ठीक बट है? अभी वो उतना हाइप नहीं है. हाँ, हाइप नहीं है, अभी तो केपी काफी कमर्शियल हो गया है. देखो, कमर्शियल हो गया है. बहुत ज्यादा. पहले तो फिर भी वो था. अभी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है. आई एम टेलिंग यू ना, केपी इज आल्सो समवेयर राइट नाउ दैट इट्स सर्वाइवल. हाँ, मतलब आपने कर लिया ना, जितना, हाँ, हाँ, पूरा दम लगा के तो ठीक है, वरना 6 महीने में बिजनेस बंद हो रहा है. बिकॉज हैंडलिंग दैट क्राउड इज वेरी डिफिकल्ट. आई क्योंकि थिंक, उधर एक तरीके का क्राउड नहीं है. इट्स हाँ, वेरी कॉस्मोपॉलिटन. लाइक हर जगह से, जैसे आपने बोला कि हर जगह से लोग आते हैं, तो पहला उनको लगता है कि अरे कोरेगांव पार्क चलेंगे, ए बिकॉज ऑफ पार्टी, ठीक है, क्योंकि बी क्लबिंग बिकॉज तो ऑफ, सब हाँ. कोरेगांव पार्क में ही है. But it's balanced. Clubbing भी होगा, पर फिर there are cafes also where people like to sit, have their morning teas and breakfast and everything. वो सब है उधर. aesthetic सब बोल लो आप. जी. तो सबको उधर आना ही है. एक बार ऐसे तो ऐसा होता नहीं है कि लोगों को एक्सप्लोर नहीं करना है. So KP is that place. So that is Okay. how I know. I've known KP for so long कि मुझे समझ ही आ जाता है the moment the client walks in what kind of a person she is and what she is actually wanting. Particularly you are from Pune itself. Yeah, I'm from Pune. Born Born and and brought up from Pune. Yeah, I'm a typical Pune. ये बढ़िया है. तो आपने केपी में रहते थे या केपी में जाके ही? So I worked in KP. मैं रहती सिटी में हूँ, सदाशिव पेट में हूँ, but yeah, I traveled to KP.
अच्छा, सदाशिवपेट से केपी। Yeah, I still do it. Yeah. Still? Yeah. Sure. I travel. I can't live in KP. तो why केपी? Again, as I said, कि एक तो it's the best area in Pune and वहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे. Again, as I said, connections. Very grounded, nice people. मतलब आपको उस लेवल पे जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि you know, can I talk this to her? Can I not? एक वो जो वाइब होता है ना, वो उनके साथ मैच भी हो जाता है. ठीक है. एंड यार अभी देखो सबके पास डिस्पोजेबल मनी हो गया है, ठीक है. लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव इट. अगेन केपी इज आल्सो एन एरिया वेयर पीपल स्पेंड. हाँ. So as compared to other places, they used to relax and calm and they don't mind paying because they know how expensive Koregaon Park is. So people there won't come and sit question me about the prices and all. So I don't have that kind of headache. अच्छा, तो मतलब आपके क्लाइंट ऐसे हैं कि यार They just know, they just want one thing. आप हमें quality दो and behave nicely with us. That's it. अच्छा, behavior and quality. Yeah. Behavior is like you can't just ruin that. मतलब behavior का कोई And it's not only for the owner, it's also for the technicians. Like they have to, like I have to train my staff for that also. Like हाँ. Yeah. तो आप अपने मतलब जो स्टाफ है उनकी भी कोई ट्रेनिंग करते हो या फिर Yeah. So क्या होता है ना? These are people who are we get it from Bengal. ठीक है, ये Bengalis होते हैं. And now they come from a very rural areas. Like उनको कलकत्ता में पहुंचने के लिए भी अपने गांव से एक दिन लगेगा. अच्छा. Yeah, and then फिर कलकत्ता से they come to Pune. ठीक है, yeah. So देखो अभी उनको इतना नॉलेज नहीं होता है चीजों का when you come into such a big city and everything. So hygiene को लेके how to talk, how to keep your eyes down because Koregaon Park में there are people जो कैसे भी कपड़े पहन के आते हैं. We are not judging anyone, but it is our duty to ये लोगों को नहीं समझता है. ठीक है, the technicians won't understand it. So technicians are male or female? I prefer male, but females भी होता है. I like males का work ज़्यादा better. Thank you. Somewhere But why it is male? क्यों मेल क्यों भाई? उनका हाथ ज़्यादा साफ रहता है and second thing I think they are more they're good listeners. अच्छा. Yeah. It is. Yeah, your females observation. get very offended by some things is what I feel. But to mold male, it is more easy. अच्छा. And what about your clients? Are they more females? Yeah. Mostly females, but ऐसा नहीं है. We have done straight. तो females are comfortable with males? Yeah. So there was this client of mine who was from Dubai. She was in hijab and everything. So she asked me, "Do you have a female technician?" I said no. So she didn't get her nails done because she was particular about getting. She cannot be touched by a male. That was her only concern. So yeah, ऐसे भी लोग होते हैं, but not always. Like people are very comfortable and see, that's what I'm telling you. Even we make clients very comfortable. Like अगर कोई लड़की कुछ भी कैसे भी आए ना, I know my technicians that they won't even look at her like this in her eyes. बाकी बातें तो छोड़ ही दो. So training का ये बहुत important सबसे पहला रूल होता है कि no matter what, you're not supposed to look up and down. You're not supposed to do hee ha ha and with no. the clients. You have to maintain that decorum of work. हाँ, अगर क्लाइंट ने कुछ सवाल पूछा कि भैया ये कैसे, तो उसका जवाब आप दे दो, पर वो भी एकदम सर don't make them uncomfortable. तो उसका भी हो रहा है तो we make sure that we place towels so the female is not uncomfortable क्योंकि वो तो नीचे बैठ के करेंगे. Obviously बात है. So वो सारी चीजें हम ट्रेन करते हैं फिर. एंड जो कुछ भी अभी देखो इंसान है, सब कुछ तो एक साथ सीख के नहीं आता है कोई. So जो भी नेल आर्ट नया आता है, कोई नई टेक्निक्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, so I train them on that also. Okay, so what is your main role in your business? Are you the trainer only? Are you the businesswoman? Are you the person who makes relationship with clients? Are you the person who handles cash and maintaining the expenses and handling your own stuff? तो आप हो क्या actually? I'm everything. अच्छा. I'm the whole and soul of Davichi. ठीक है. Okay. So yeah. So I'm very passionate about my business. ठीक है. I'm very particular. Like एक बॉटल के ऊपर धूल भी आ गई ना, I'll not wait for my technicians to clean it. I'll just go and
so that this is like indirect training to them कि देखो अगर साफ नहीं है तो make sure that it's clean, it's hygienic, and I am very particular about the finish, the colors. Like I want it all good only, so I don't want to compromise on that level. So I only handle my cash and billings and everything. I train. I'm an employee at Davichi. I have everything. बढ़िया. Do you believe in spirituality? Yeah, a lot. So yeah. So मेरे लिए ना ऐसा है कि for me vibe matters the most. So कैसे होता है ना, जब कोई क्लाइंट आता है I can actually feel how that person's aura is. ठीक है. I keep my place very clean. It is very, मतलब आप अंदर ऐसे आओगे ना, आपको ऐसे लगेगा मैं सो जाऊँ. हाँ, मैं सो जाऊँ. It is so relaxing. It is always clean. It's very monochromatic. You know, you will feel very शांत. So वो ऑरा मैंने वैसे बना के रखा है कि सुबह मैं आऊंगी, मैं सब अपना मंत्र करूंगी, फिर धूप वगैरह होगा. So मैं अपना एक रिचुअल है जो मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअल है. इट इज आई कनेक्टेड दैट वे कि ये तो मतलब डेली होना ही है. बिकॉज अगर मुझे समझता है कि किस पर्सन का वाइब कैसा है, I understand, you know, if this person is, you know, really happy about it, really not happy about it. So I like to keep the aura nice. अच्छा. So that is my main focus in Davichi. So मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तो उनके लिए आप कुछ करते हैं या फिर जस्ट मेंटेनिंग योर गोल? एक तो लड़कियां आती है सबसे ज्यादा, ठीक है. अच्छा. व्हाट इज द एज गैप? नहीं, सबसे ज्यादा हमने 14 years old पे भी किया है. अच्छा. सो इनिशियली व्हाट वी सजेस्ट इज 14 साल के बाद आप कर सकते हो. उसके पहले people are doing it out there. So foreign में ऐसा होता है कि like मेरे पास एक कनाडा से क्लाइंट आई थी, her baby was like 7 years old, but she already had gel polish and everything, which is not actually suggested, you know. It's because nails are very fragile, you can't ruin them at such a young age. But she was like, no, we always get it done. तो वो exception अगर हम, मतलब एक तो पूरे स्टूडियो में कैमरास हैं, ठीक है, साउंड वाले हैं, हम पहले ही बोलते हैं कि अगर कुछ हुआ तो it's your responsibility, not ours. Okay. So पैसा था इसलिए we did it, otherwise we don't suggest. 14 years के बाद you do whatever you want to. So 14 से आते हैं, like we have done 80-year-old का भी. So yeah, people are that crazy about nails now. मतलब अभी भी आ रहा है मार्केट में, इतना नहीं है. हाँ, मतलब देखा जाए तो इतना नॉलेज भी नहीं है लोगों के पास. नहीं है. What I suggest and what I think, I'm not suggesting, I just think कि इतना नॉलेज तो नहीं है नेल्स के बारे में. हमने आज तक कभी अपने नेल्स को ध्यान नहीं दिया. हाँ, नहीं आते, मेरे पास नेल्स भी आते हैं टुगेदर, ट्राई मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, एंड दे वांट टू फील हाइजीनिक एंड क्लीन. अच्छा, ये बढ़िया था. मेंस भी जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाता है. सीरियसली. अब अगर मैं ऐसे लेके चलूं कि भाई यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग, तो कहीं पर आपको ये फील नहीं होता कि भाई कहीं ना कहीं मुझे और कुछ सपोर्ट्स की जरूरत है, या फिर फंडिंग, या फिर किसी ऐसा कुछ मुझे बाहर से एक आउटसोर्स मिले जिससे मैं और कुछ अच्छा कर सकूं इस बिजनेस को लेकर के, आप मतलब टू ग्रो योर बिजनेस? आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो थोड़ा सा उनके हिसाब से चलना पड़ता है. Is what I feel, and I don't want to, because I know what effort I have put in Davichi, and I know how it will grow. And if nothing works out, I have another option for that. But मुझे वो किसी को ना, क्या होता है, वो अथॉरिटी अगर आप किसी को देते हो ना, फिर आपका विजन ही चला जाता है. अच्छा, तो is what I feel. I want to keep it very. एक्सटर्नल फंडिंग से ज्यादा अच्छा है कि जितना हमने करना है उतना हम कर सकते हैं, उतना करना. ये मेरा बिलीफ है. हाँ, मतलब हाँ, this is my way. मतलब people are always into investors and everything. I feel थोड़ा सा कि I don't want any like bossing over. तो ऐश्वर्या, आप एक जो बिगिनर है उसको आप क्या सजेशन दोगे, और कैसे एक बिगिनर को अपने बिजनेस को इनिशिएट करना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में?
सो मुझे ऐसा लगता है, देखो कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, तेल से नहीं है, आपको उस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप खुद करो या आप टेक्नीशियंस रखो, बट यू हैव टू हैव फुल नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। तो जो भी बिगिनर्स है, मैं तो उनको यही बोलूंगी कि पहले आप पूरा कोर्स करो, आप उसका नॉलेज लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि कल को अगर क्लाइंट आपको आके कुछ पूछ रहा है, यू शुड हैव द आंसर, नॉट द टेक्नीशियंस। Okay. So you should know. You should know your business in and out. What products? Why this product? Why this technique? Hmm. So yeah, beginners के लिए तो सबसे पहले कि तुम सीखो। अच्छा। Yes. और आपके बिजनेस को अगर मान लो स्केल करना है, यू हैव रीच्ड योर लेवल, तो व्हाट इज योर वर्क फॉर्मूला कि भाई अब मैं इसमें स्केल कैसे करूंगी, मतलब व्हाट इज योर वे कि भाई उसको स्केल कैसे किया जाए? For me, तो it's franchisee building. अच्छा। तो I am तो working on that right now. जो मेरा अभी बन जाएगा मॉडल in 2-3 months most probably. ओके। And I'm planning to grow it like that only. तो ये जो फ्रेंचाइजी रहेंगी, आर यू पीपल आर प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एसओपी मॉडल कि भाई हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे? उसी पे डिस्कशन चल रहा है, but yeah, it is going to be somewhat on those lines only. Yeah, something like that. अभी वो चीजें in process ही है। अच्छा, यू आर इनटू डिस्कशन मोड। Discussion mode, yeah. ओके। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस इनिशिएट करता है, तो उस इस नेल आर्ट में मैनिक्योर पेडिक्योर और भी जो चीजें हैं, उसको इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर और किस लोकेलिटी में करना चाहिए ये काम इस बिजनेस को? देखो, I will to suggest it has to be a prime area of course, but अगर आप एक affordable setup करना चाहते हो तो you can do it at home also or in a smaller space also. ओके। If you're looking at it as a hobby or like a side income, maybe something like that. But if you're opening a proper salon, it has to be in good area. तभी लोग वो exposure उधर ही मिलेगा आपको। और एक बोले ना credibility, और एक जो होता है कि you will be known, एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगा आपका। अच्छा, जैसे हम तो मेट्रो में रह रहे हैं भाई, पुणे में, तो क्या ये टियर 3 सिटीज जो और भी इससे डाउनग्रेडेड सिटीज हैं, वहां पर भी ये बिजनेसेस चल रहे होंगे? देखो चलते हैं, पर अगेन ना वो क्वालिटी मेंटेन करना, वो सब एक क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनना, वो उनका ट्रेनिंग पार्ट में थोड़ा वो कम बढ़ जाता है। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, दे डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू हायर पीपल फ्रॉम, जो भी जैसा मिल रहा है वैसा करो। बट आई वुड सजेस्ट, या हम तो टियर 1 में आते हैं, तो अगर आप हो टियर 1 में तो आप ऐसे ही जगह चुनो जहाँ पे एक्चुअली वो बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा कोरेगांव पार्क में है, बिकॉज इट्स अ हब फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड Yeah. व्हाट वुड बी द कॉस्ट फॉर स्टार्टिंग इन केपी लाइक? सो इनिशियली तो 15 to 20 लाख आप मान के चलो, अगेन ये बढ़ सकता है। ये वर्किंग कैपिटल है या फिर आप इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, हाँ, मतलब देखो कैसे होता है ना, आप ये फिक्स कॉस्ट है आपका? हाँ, मतलब देखो इंटीरियर्स वगैरह पकड़ के एंड फिर इन्वेंट्री वगैरह ऐड करके ऐसे होता है। पर प्रोडक्ट्स का कैसे होता है ना, 2 साल लाइफ रहती है, बिकॉज इट्स जेल प्रोडक्ट्स, तो इट डजंट गेट नहीं, ट्राइड। जैसे मान लीजिए हमने 20 लाख रुपीस लगाया, डाला। ठीक है, अब पूरा का पूरा हम कैपिटल प्रोडक्ट, जैसे हमने कुछ ऐसी चीजें ले ली, रेंटल ले लिए, तो हमारे पास कितने दिन का वो सर्वाइवल अमाउंट रह जाएगा इन 20? 6 महीने या अच्छा। 6 months, तो 6 महीने का इसमें इंक्लूडेड वर्किंग कैपिटल वो भी तो है? हम कंसिडर Operations. करते ही है। हाँ हाँ, पर वो तो आपको कंसिडर करके ही चलना है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ, एंड you have to be also be very particular in what time you are starting your business. Okay. आप बारिश में नहीं खोल सकते हो नहीं इसका बिजनेस। एक जब Okay. सीजन होता है आप तभी खोलोगे ना, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। हाँ, तो So you have to be सीजन very- क्या है एग्जैक्टली देखा जाए तो बारिश नहीं है। नहीं होते, मतलब थोड़ा सा अगस्त एंड सितंबर, जब हमारे सारे त्योहार चालू हो जाते हैं, अच्छा, त्योहार, शादी सीजन, शादी सीजन, एग्जैक्टली, घूमने का जो टाइम है, या एग्जैक्टली, मतलब रैंडम कुछ नहीं करना है। रैंडम नहीं है। नहीं, यू हैव टू पुट योर ब्रेन्स इन इट। ओके, जैसे कि मैंने कि जून जुलाई अगस्त हमने पूरा वो काम अंडरस्टैंडिंग में लगाया, काम, फर्नीचर, ये सब वो, एंड अगस्त भी प्रॉपर्ली स्टार्टेड ऑफ, बिकॉज देन वी हैड क्लाइंट्स कमिंग इन इन। केस अगर कोई मार्केट रिसर्च करना है इस पे, तो कैसे किया जा सकता है? So what I had done, I'll tell you that you have to make sure you're calling all the salons आपके आजू बाजू,
ठीक है। get all the database. You have to sometimes even go there and get the service, अच्छा। how people are treating you. सेकंड। And मेन तो यही है कि पहले तो आप सबको कॉल करके रेट्स निकालो, ठीक है, ठीक प्राइसिंग है, निकाल प्राइसिंग निकालो. हम्म। सेकेंड, हाउ डू दे ट्रीट यू, क्योंकि नेल्स इज ऑल हॉस्पिटैलिटी. वहां भी क्या लूप होल दिख रहा है उसको फाइंड आउट करो। हाँ. एंड तीसरा ये कि जो बाकी कर रहे हैं उनसे हम क्या अलग कर सकते हैं. मतलब तीसरी ऐसी चीज कि भाई यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस क्या है. यूएसपी बोल लो। हाँ, वो क्या है कि ठीक। ये हमारे इधर ही मिलेगा, क्योंकि हर कोई यही ढूंढता है. तो हैव यू डन दैट? या बट कैसा ना, वो हमेशा इट्स अगेन एज अ फीमेल यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स। बट या वो देखो कि हर किसी का ना कंफर्ट अलग होता है हर चीज को लेके. मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं समटाइम्स. वो एक रील नहीं बनी थी बीच में कि थेरेपिस्ट भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ. हम एक्चुअली वो रोल में चले जाते हैं कि हमारे लिए तो एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट, एवरी स्टोरी इज डिफरेंट. सो हम तो वैसे बन ही जाते हैं कि हाँ हम डिफरेंट ही है. तो आई थिंक दैट कुड बी योर यूएसपी. या I connect very well with people. The only reason I'm not keeping manager is that एक तो I love connecting with people. I understand their problems. क्योंकि देखो क्या होता है ना, ज्यादा तो फीमेल्स को वेंट आउट करनी होती है चीजें. And they only want a good listener there. कि तुम सुनो मेरा. तो मैं हूँ दाविची पे सुनने के लिए, आ जाओ. वो होता है ना कि what happens in this thing, it stays there. So Davichi is that place कि whatever is said in Davichi, it stays in Davichi. Okay, मतलब It's a ये safe space for safe everyone. space. Yeah. Like मतलब लोग अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके आते हैं. They are very secured कि हाँ ये चीज इधर से बाहर नहीं जाएगी. या कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं. जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके अलावा अगर आप जो देते हैं वो है एक मेंटल पीस. एग्जैक्टली. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस कि बिगिनर्स को कैसे क्या करना है. यही गलती लोग करते हैं कि दे डोंट इन्वॉल्व. वो बिजनेस को बिजनेस की तरह कर रहे हैं कि कर रहे हैं, भाई बस. दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय सर्विसेज एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. लोग आए मशीन की तरह, यहाँ चीजें होंगी. आई वांट द नंबर गेम कि भाई 10 नंबर ऑफ क्लाइंट पर पर्सन, मुझे 2000 रुपए भी आ रहा है तो इंटू 10 भाई 20,000 आ गया. वो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे ना उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा. तो ये इन्वॉल्वमेंट तो भाई बिजनेस थॉट से अलग ही आ जाता है. हाँ, बट इट्स नॉट ओनली विद द क्लाइंट्स. यू हैव टू आल्सो बॉन्ड विद टेक्नीशियंस. उनका अलग ही रहता है. यू कैन नॉट बी रूड विद देम. यू हैव टू हैंडल देम वेरी नाइसली, बिकॉज ये क्या होता है ना, उसमें उनकी कभी गलती नहीं होती है. वो लोग इतना दूर से आते हैं. यू नो, आई लिटरली हैव टू टॉक टू देयर पेरेंट्स कि आंटी आप टेंशन मत दो, अच्छा मैं हूँ, कुछ नहीं होगा. सो इट्स नॉट ओनली बॉन्डिंग विद द क्लाइंट्स बट इट्स ऑल्सो बॉन्डिंग विद योर टीम. सो मैं भी बोलती हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आई एम द ओनर ऑफ दाविची. नहीं, मैं भी एम्प्लॉय हूँ. ठीक है, आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओ. और लोग यही गलती करते हैं कि हाँ हम इन्वेस्टर्स ला देंगे, पैसा आ गया, मैनेजर बिठाओ, हो गया. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द होल प्रोसेस. लाइक इवन इफ आई एम गोइंग टू गिव अ फ्रेंचाइजी, आई विल मेक श्योर दैट आई एवरीवेयर इन्वॉल्व्ड इन इट, बिकॉज मैं अपना क्वालिटी और जो मेरा ये है, मैं वो आई कांट लेट इट डाउन. अच्छा, तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन था कि भाई कंपटीशन या चैलेंजेस हैव यू फेस्ड और आप फेस करते हो क्योंकि इट्स अ बिजनेस. Yeah, but I'm okay with it. Lot of challenges. Every day is a challenge. अच्छा. ठीक है. And I think competition अगर होगा ना, हाँ. तो ही मजा आता है. मैं तो बोलती हूँ लोगों को बाजू में सैलून डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लीज. क्या होता है, एक तो उससे विजिबिलिटी मिलती है. If people take you as a competition, they will talk about you. You know what, this is there, that is there. और भीड़ आएगी. भीड़ क्राउड आएगी. आएगा. हाँ. तो मेरे लिए तो अच्छा है. तो मतलब बोलते हैं, आ जाओ. competition is good for you. हाँ. And you should always take it in a good way. और challenges तो देखो हर किसी दिन कुछ ना कुछ तो होता ही है. और challenges के बिना क्या ही है business. ये भी बात है. So it's always, so it's if you don't have a challenge, it means something is wrong. हाँ, कुछ तो गड़बड़ जा रहा है. गड़बड़ है. फ्रिक्शन ऑलवेज जरूरी है. बहुत जरूरी है. तो मतलब क्या होता है ना, फ्रिक्शन माइंड को एक मोमेंट देता है कि यू शुड वर्क मोर. Exactly. How to make it more better day by day. ओके, बट आई थिंक यू आर हैविंग अ ग्रेट यूएसपी कि भाई यू टच द इमोशन ऑफ पीपल, कि भाई आप लोगों के इमोशन के साथ कनेक्शन बढ़ाते हो. Again, there's how my backstory relates to it. I have been in a
सिचुएशन, सच सिचुएशन कि भाई जहाँ पे मेरे को बात करने के लिए लोग नहीं थे. एंड व्हेन आई मतलब सी पीपल एंड इफ आई कैन बी दैट पर्सन, व्हाई नॉट? व्हाट आई हैव टू डू? आई जस्ट हैव टू बी ऑल इयर्स. मतलब यू आर सेइंग कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, पर बिजनेस के साथ साथ जो यू हैव फेस्ड कि भाई जब मेरा बैड सिचुएशन चल रहा था और मैं ऐसा लो फील कर रही थी और उस समय मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी मेल और फीमेल, कोई भी जो मुझे सुन सके. सो यू हैव क्रिएटेड अ प्लेस कि भाई यहाँ पर हम आपको सर्व ही नहीं करते, विल लिसन आल्सो. Will listen also, yeah. ये काफी Because I have that emotional side, na, so I just can't be bad to people. ओके Yeah. डन. अगर मैं एक बिगनर हूँ, जैसे मेरा अभी बिगनर वाला क्वेश्चन चल ही रहा है, तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या सजेस्ट करोगी भाई? इसको किस तरीके से आपको इनिशिएट करना चाहिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है आपके साथ या आपकी फ्रेंचाइजी लेके, या डायरेक्टली विदाउट जस्ट वाचिंग दिस वीडियो की? पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, यू हैव टू गेन नॉलेज. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पूरा घुस जाओ, बट एक जो बेसिक होता है, क्योंकि अगर आप समझ लो कि आप अफोर्डेबल सेटअप कर रहे हो आपके घर पे ही, ठीक है, बड़ा भी मत सोचो कि 1.5-2 लाख आप डालोगे, आप अपने घर में सेटअप करोगे. मेन थिंग इज नॉलेज. तो ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? देर आर सो मेनी एकेडमीज. हम भी खुद ट्रेन करते हैं. वी ऑल्सो रन एकेडमी. वी हैव कोर्सेज, वी हैव बेसिक कोर्सेज, वी हैव एडवांस कोर्सेज. ओके, या सो ट्रेनिंग में आप क्या प्रोवाइड कराते हैं? सो बेसिक कोर्स में हम लोगों को बेसिक सर्विसेज जो होती है वो सिखाते हैं. क्या है, व्हाट आर नेल टाइप्स, फिर शेप्स, फिर कौन सी उंगली के हिसाब से कौन सा शेप आपको सजेस्ट करना है, कौन से कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको कौन से कलर सजेस्ट करना है. फिर आते हैं एक्चुअल सर्विसेज लाइक ड्राई मैनिक्योर हो गया, फिर पॉलिश हो गया, फिर ओवरलेस हो गया, फिर जेल एक्सटेंशंस हो गया, एक्रेलिक एक्सटेंशंस हो गया, फिर नेल आर्ट तो उसमें आता है. नेल आर्ट इज तो स्काई इज द लिमिट. हम तो लोगों को बोलते हैं आप हमें बताओ, अच्छा, हम दिमाग लगाएंगे कि ये कैसे हुआ है, विल टीच यू. इट्स ओके. जो बेसिक है वो तो हम सिखाते ही है. और एडवांस में हम थोड़े और 2-3 ऐसी चीजें सिखाते हैं कि जो अभी तक इंडिया में लोग कर नहीं रहे हैं, बहुत कम जगहों पे कर रहे हैं. बट मेरा ये है कि अगर आप बड़ा सेटअप सोच रहे हो ना, तो यू शुड डू एडवांस कोर्स जहाँ पे आपको पूरा ही नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना, नॉट यू डोंट नो हु इज गोना कम टू यू. क्योंकि मेरे पास भी यूएस यूके से लोग आते हैं, तो वो नहीं हमें डिप वाला ही चाहिए, नहीं हमें फॉर्मिंग नेल ही चाहिए. तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है. अगर आप छोटे से अफोर्डेबल सेटअप में करना चाहते हो तो बेसिक नॉलेज इज फाइन. अच्छा, ऐसा. बट इफ यू आर थिंकिंग बिगर देन यू हैव टू हैव मोर नॉलेज. ओके. या मेरे हिसाब से ये सब तो बेस्ट है, बट एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई एज अ बिजनेस पर्सन, उसके साथ साथ एज अ वुमेन, ठीक, तो ये कैसा रहा और ये कैसा चैलेंज? मतलब क्योंकि हम तो भाई मेल्स आर बॉर्न टू वर्क एंड ऑल, कि भाई हमें तो ठीक है, पर फीमेल का एक अपना ही जर्नी रहता है. हर एक सिचुएशन उन्हें फेस करनी है, सोसाइटी है, बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए, कि भाई इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि एक फीमेल को अपने किचन से निकल के एक बिजनेस में आने में अब बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है. लोग क्या कहेंगे, ये तो चलिए दुनिया के लिए कि भाई लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल, ठीक. वो 4 लोग कौन है? फिर उसके बाद आता है कि भाई हमें क्या, हम क्या इस बिजनेस को करने के लिए बने हैं. फिर मतलब आपकी जो फैमिली है वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है. और एज अ बिजनेस वुमेन हाउ यू सी कि भाई हाउ यू फेस द चैलेंज, कि भाई और ये डे टू डे चैलेंजेस है, तो इसको आप कैसे कोप अप करते हो और कैसे आपने किया है मतलब इतने समय में? सो इनिशियली ऐसा था ना कि ऑफ कोर्स बिजनेस वुमेन, ऊपर से वुमेन, जैसे आपने बोला, इट इज ऑलवेज चैलेंजिंग. स्ट्रगल है, सिंपैथी तो छोड़ ही दो, वो तो कुछ मतलब वो सिर्फ बोलने की बातें है. क्योंकि ना हमारे इधर कैसा ना एक रूल बुक है, अगर आपने वो एक तोड़ दिया ना, चाहे आप मेट्रो में ही क्यों ना रह रहे हैं, हाँ, तो अगर वो रूल बुक में से जो हमारी सोसाइटी ने हमें दिया है, आपने एक भी रूल तोड़ा ना, कोई आपको नहीं पूछेगा गलती किसकी है, क्या हुआ, तुम ठीक हो, नहीं, तुमने रूल तोड़ा, तुम गलत हो. ठीक है. तो जैसे ही एक लड़की वो दहलीज पार करती है, उसके ऊपर ये सारे सवाल
आ जाएंगे कि लड़की है, इस पे बिठाओ, शादी कराओ। लड़की का एक बिना चुना वो उनका सेट है। नहीं, इसमें भी यह फेज एक बड़ा चैलेंज और जुड़ा, एग्जैक्टली मतलब वो सोचो ये तो सेपरेशन का। एग्जैक्टली ये तो फ्रेम्ड है ये ऑलरेडी। तो फ्रेम था, बट इसमें आप मतलब वो जो बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा। हाँ, कि सोने पे सुहागा क्या जुड़ गया कि भाई ये सेपरेशन भी। हाँ Then तो इसमें क्या है अकेली ना, नारी वो अबला अबला वाला। नारी कि अब तो ये रास्ते पे गिर गई। नहीं नहीं, अगर तुम ऐसे देख भी रहे हो, तुम सिर्फ बोल रहे हो, उठाने नहीं आ रहे हो हमें, उठना हमें ही है। सही बात है। हाँ ठीक है। तो पर इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स का आता है। हाउ इज आर हाउ प्रोग्रेसिव आवर पेरेंट्स आर। मतलब मैंने जब वो दहलीज पार की एज अ वुमेन, देयर वर 100 क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके। वो सेम क्वेश्चन अगर मर्द दहलीज वो पार करे तो कोई उसको नहीं पूछेगा, ठीक है। उसको तो लगेगा अरे बाप रे, बिजनेस कर रहा है, वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज है ये वो। बट सेम थिंग इफ अ वुमन इज डूइंग, दिस इज अ हार्श रियलिटी, ठीक है, लेट्स फेस इट। आई एम नॉट सेइंग कि लड़का लड़की, बट जैसे जो है वो है। हाँ, जो जैसे प्रियंका चोपड़ा ने एक बार बोला था वो जेंडर बायस के लेके कि इक्वालिटी के बारे में उन्होंने बोला था कि अगर एक लड़का कंपनी का सीईओ है after having 3 kids, even I can be a CEO if I'm a mother of 3 kids. If you're not questioning him, don't question me. वो होता है इक्वालिटी। इट्स नॉट अबाउट कि तुम मर्द हो या तुम औरत हो। अगर तुम्हें इक्वालिटी देना है तो सेम टर्म्स में इक्वालिटी दो। पर ये हमारे केस में नहीं होता है। दिस इज द हार्श रियलिटी इन इंडिया। सो इन इंडिया ही मैं तो बोलूंगी एवरीवेयर। बट देन अगर आपके पेरेंट्स, देखो ये 4 लोग जो आपने बोला, सोसाइटी कोई नहीं होता है, ठीक है। आई हैव लर्न दिस थिंग। ये 4 लोगों ने 4 दिन बातें करी, बात खत्म। सब अपने जिंदगी में वो और किसी और 4 लोग ढूंढेंगे और उनके बारे में 4 दिन बातें करेंगे। ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स वाला भाई, हमारी बेटी की शादी हुई, 4 नहीं 40,000 लोग आ गए, और अब जब ऐसा हुआ तो 4 लोग भी नहीं आए, सिर्फ पीछे से बातें कर रहे हैं। तो माय पेरेंट्स वर वेरी श्योर कि देखो मुझे आई हैव अ यंगर ब्रदर, बट they still invested in me. So मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है कि my parents वाला क्या किया शादी करके। So let us invest in you. You are the gem. They have not scolded you. Never. They were the ones like, come, don't do it to yourself. So they always supported me. देखो क्योंकि क्या होता है ना, no matter what decision you take, अगर आपको आपके बच्चों से प्यार है ना, तो आप उसको सपोर्ट करोगे। It doesn't matter. तो मेरे मॉम डैड का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो दे वर लाइक नहीं तुम आओ, सोसाइटी की तरफ ध्यान मत दो, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। सो आई वाज नेवर एक्चुअली बॉदर्ड विद लोग क्या कहेंगे। वैसे मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बिकॉज आई थिंक इफ आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। आई विल लिव माय लाइफ ऑन माय टर्म्स, द वे आई वांट टू लिव इट। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ लाइफ में कि आपका मतलब what you say कि जो separation हुआ, is it in a right way? मतलब ये होना था? Oh, I always say that I'm happily divorced. Okay. I always say that because अगर वो नहीं होता ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती. I am so grateful for that because if I imagine my life there, I know how it would have been. Maybe I would have been comfortable in that way also, but what I have right now in my hands, वो तो amazing feeling मुझे कभी नहीं आती थी. हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपका वो नेगेटिव सिचुएशन इतना ज्यादा बन गया था, वो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बन गया था और वो रेपिटेटिव आ रहा था सामने, इस वजह से आप वहां से it's better to move on in thing like in life only. I feel देखो ऐसे नहीं है कि अभी दाविची है, सब गुड़ी है, बहुत चीजें होती है, बट some things you have to keep aside and move on. चाहे वो बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, अदरवाइज आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ओके। So, एक ऐसा कोई वर्स्ट डे जो आपने फेस किया हो कि भाई ये मेरी लाइफ का वर्स्ट डे है, दाविशी के बारे में पूछ रहे हो? किसी भी लाइफ इट्स ऑल अबाउट लाइफ है तो पर्सनल को लेके तो मैं नहीं हुई हूँ, क्योंकि मे बी माय पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी। नॉट दैट दाविशी के लिए मेरे साथ नहीं है, बट क्या हुआ था, सो क्या होता है ना, देयर आर चैलेंजेस, ठीक है। सो देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आई हैड नो वन इन दाविची. My technicians ran away without informing me. So that 1 week, बिना नोटिस के गायब हो गया। हाँ, see it's okay. I don't stop anyone and I don't take it in a bad way. यहाँ काम आता है आपका नॉलेज.
जो मैं लोगों को बताती हूँ वो अच्छा। एक वीक मैंने काम किया. हम्म. It As a was technician stressful. also. Yeah. While handling people. Till today, if I have a appointment, Hmm. but if I get another appointment Hmm. and the technician is busy, हम्म. I do that. अच्छा. मैं क्यों छोड़ू क्लाइंट? हाँ, मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ू? मैंने नॉलेज किसके लिए लिया है? हम्म. So that one week when I had no one, I had me. Okay. देखो आप दुनिया में अकेले आते हो, अकेले चलिए जाते हो, जाओगे. सर्वाइवल मोड ऑन करो, हम्म. ठीक है? हाँ. तो इसीलिए यू शुड नेवर स्टार्ट अ बिजनेस रैंडमली. यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि लाइफ में यू डोंट नो कैसे सिचुएशंस आएंगे. सोचो वन वीक मस्ट बी सो स्ट्रेसफुल हम्म. कि अचानक देखो टेक्नीशियंस मिलना, मुझे 5 टेक्नीशियंस मिल गए थे, बात वो नहीं है. बट आप सोचो कि मैं उनको ये नहीं बोल सकती हूँ ना तुरंत कल ट्रेन में बैठो. वो तो आई कांट से दैट टू देम बिकॉज उनको कलकत्ता पहुंचने में 1 दिन लगेगा. और ये आप सिर्फ कलकत्ता से ही मंगाते हैं? आई लाइक बंगाली पीपल. अच्छा. ये मेरा है. ये तो मतलब डोंट यू थिंक कि मराठी एंड बंगाली का कॉम्बिनेशन क्रिएट समथिंग? नो आई टेल यू क्या होता है ना, अभी इसमें भी कंपटीशन होता है. इफ यू हायर लोकल्स सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक दैट वे आल्सो. नाउ यू टेल मी, इतने सैलून्स है, सब बाहर से ही क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं? मैं अगर लोकल हायर करूंगी तो वो मेरा वो तो अपने क्लाइंट time- कन्वर्ट कर लेगा. हाँ, वो तो अपने टाइम पे भी फिक्स होगा ना. एग्जैक्टली नहीं, पर वो मेरा क्लाइंट कन्वर्ट कर सकता है ना. सोचो अगर आप मेरे पास आए, ठीक है, मैंने मेरा जो लोकल टेक्नीशियन है मैंने उसको आपको दिया करने के लिए. कितना टाइम लगता है बातचीत करके, नंबर ले लो, ठीक है सर मैं आपके घर आ जाऊंगा. सो दैट्स व्हाई आई डोंट गेट इनटू दैट एंड आई फील इस कि टाइप के प्रॉब्लम से बाहर निकलना है भाई. that's the only अपनी मोनोपोली भी तो चलती है. बट आई ऑल्सो फील कि कैसे होता है ना, जो लोगों को जरूरत होती है ना काम की, हाँ. वो बहुत मन से काम करता है. It shows that you are very deep into your business. भाई आप you're handling the human resource also from outsourcing at Yeah. Calcutta. Calcutta. वहाँ से भी एक लोकेशन से ही आप लेके आ रहे हैं. लेके ठीक है, और वहाँ उनको लेके एंड आना, ऑल्सो सो वी हैव टू कीप देम हियर. हमें उनका रेंट हाँ. करना पड़ता है, ठीक है, स्टे एंड ऑल. स्टे एंड एवरीथिंग. सो जब वो आते हैं सो आई हैव टू ऑल्सो मेक श्योर दैट इफ आई हैव 3 टेक्नीशियंस दे ऑल नो ईच अदर. बिकॉज मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं रैंडम से कहीं से मैं एक जगह से बुला रही हूँ दूसरे को. क्योंकि देखो मेरे को ऑलरेडी इतना दावीची पे स्ट्रेस होता है, काम का वर्कलोड होता है. आई डोंट वांट टू स्ट्रेस अबाउट देम बीइंग एट होम एंड फाइटिंग विद ईच अदर. सो यू हैव टू कंसिडर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ की वो भी हमें हैंडल करना पड़ता है. कि हम ऐसे ही लोग रखेंगे जो दोस्त हो, जो आपस में घुल मिल के रहेंगे, एक दूसरे को टाइम पे आएंगे. तो दे वेरी स्मॉल, मतलब लोगों को ये नहीं लगती है बड़ी चीज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइन्यूट चीजें हैं बट है, बहुत इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस. बहुत इम्पैक्ट करते हैं. मैंने आज तक ऐसा टेक्नीशियन ऐसे नहीं रखे है कि जो किसी को एक दूसरे को जानते ही नहीं है. अच्छा. दे नो दे हैव सम कनेक्शन. क्या होता है ना, फिर वो उनमें भी इमोशनल बॉन्ड होता है. अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि दे विल क्रिएट अ ग्रुपिज्म इन योर. वैसा मैं उनके साथ रिश्ता रखती हूँ ना. अच्छा, यू आर आल्सो कनेक्टेड विद देम. आई एम वेरी मच Very close कनेक्टेड. very. मैं उनके थाली में से खाना खाती हूँ. आई एम वेरी मच दैट वे. आई एम लाइक हम सब एक ही है. वी आर ऑल एम्प्लॉयज. लोन या इन्वेस्टर? लोन. एनीटाइम. ठीक है. लग्जरी लोकेशन या अफोर्डेबल सेटअप? लग्जरी लोकेशन. ओके. सोशल मीडिया मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ. ओके. फ्रेंचाइजी या सिंगल स्ट्रॉन्ग आउटलेट? फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइजी. बट Both. यू हैव क्रिएटेड योर ओन. But I will create more now. Yeah. इमोशनल डिसीजन या प्रैक्टिकल डिसीजन? Mostly practical decision, but exceptionally emotional. But अच्छा. mostly practical, yeah. मोस्ट. वर्क लाइफ बैलेंस या हसल मोड? There's no work-life balance, okay? अगर आप hustle नहीं करोगे ना तो balance रखने के लिए you're hustling, right, all the time. So it's hustle mode always. अच्छा. वुमेन एम्पावरमेंट इन वन वर्ड? Is there a word for men empowerment? सरकाज़म हो गया. So not real. अच्छा. वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? Having a good health. Because अगर आपका health अच्छा है, then you can hustle and you can actually तो put your हेल्थ के लिए क्या beliefs. क्या करते हो आप? A good routine. Hmm. Eat healthy, wake up early, some diet and workout, basic. अच्छा. ज्यादा भी मत करो, but basic, But जो whatever. basic है Yeah, वो yeah, करनी चाहिए. yeah, basic. ओके. You shouldn't feel lazy. Yeah, आप वेजिटेरियन या नॉन वेज? vegetarian. वेजिटेरियन. But I work all days. No chutti for me. डोंट टेक लीव. No.
सीरियस मनी या पैशन? Passion. If you have passion, you get money. अच्छा फेम या पीस? Peace. पीस. Yeah. If you have peace, everything feels like Okay. good. You are more inclined to spirituality. Spirituality, emotions. We want to make peace. ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट हल्का सा बिट है। डाइवोर्स के बाद सोसाइटी वुमेन को जज करती है। Of course, it goes like. Of course, हमेशा जज करती है, हमेशा। ओके। वही बोला ना मैंने, जो एक रूल बुक है उसका एक रूल औरत ने तोड़ दिया, बस खत्म। तो व्हाट यू गिव अ काइंड ऑफ पीस ऑफ एडवाइस ऑल द वुमेन्स? Ignore everyone. There's nothing called as society. It's only you. Believe in yourself always, and that's what I've followed. ओके। You know your capabilities. हम्म। Yeah, you can't ruin your peace of mind for चार लोग क्या कहेंगे. Believe in yourself. ओके। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में सिंपैथी ज्यादा मिलती है या स्ट्रगल ज्यादा होता है? Struggle anytime. सिंपैथी नहीं मिलती? वो सिर्फ बोलने के लिए है ना, मदद करने कोई नहीं आएगा। अरे बेचारी, अरे क्या हो गया, मदद करने कोई नहीं आता है। I feel it's only struggle, but it's good also. It's good. You learn because of that. You learn new things every day. You learn people every day. आपको समझ आता था अपना कौन है, अपना कौन नहीं है। और And I highly work on that. और ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक्सपीरियंस ही आता है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लाइक आई कैन कट ऑफ सो मेनी पीपल इजीली फ्रॉम माई लाइफ। लाइक आज मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है एंड कल वो मेरी नहीं है, इट्स ओके। यू आर रूइनिंग माई ऑरा, यू आर नॉट अलाउड टू। हाँ मतलब यू हैव टू मेक पीस विद सिचुएशंस, आई फील। मतलब अगर आप अपने सिचुएशन में पैसा देख रहे हो कि भाई यहाँ पर थोड़ा ऑरा रूल हो रहा है और पैसा मिल रहा है, तो यू विल सेलेक्ट कि भाई पीस मिल जाएगा, पैसा छोड़ते हैं। सो ऐसे नहीं है, देखो सारे क्लाइंट्स अच्छे नहीं है, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स हाँ कुछ बहुत तंग भी करते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना, सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इसलिए मैं समझ के यू नो अच्छे से बोल के मैं कर लेती हूँ। बट देयर आर पीपल जो कुछ एथिक्स को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, यू नो दे फाइट ओवर इट एंड ऑल। तो बट मुझे ऐसे लगता है कि आई हैंडल सिचुएशंस डिफरेंटली, बट अगर आपका पीस उससे एक्चुअली रूइन होने वाला है तो इट्स ओके। देखो 2 क्लाइंट्स मेरे पास नहीं आएंगे पर इट्स ओके, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ना क्लाइंट्स है ना टेक्नीशियंस के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, लाइक दे आर स्लेव्स। या सो दैट टाइम आई हैव टू स्टैंड अप विद माय टेक्नीशियंस। ओके। या दैट टाइम आई हैव टू मेक श्योर को कैसे हैंडल किया जाए? नो देन आई जंप इन, आई एम लाइक मैम टेल मी व्हाट हैपेंड, और फिर मैं टेक्नीशियंस को कैसे सॉर्ट करती हूँ कि मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ, सॉरी थोड़ा समझ के ले। दैट्स हाउ यू हैव टू बैलेंस इट। या मुझे वो बैलेंस करना पड़ेगा। So Aishwarya, I have seen everything in your business that you're having a unique selling point also. भाई जहाँ पर लोग आपकी जगह पे आकर के अपना एक देखा जाए तो अपनी सर्विसेज ही नहीं लेते हैं, वो अपने आप को एक मेंटल ट्रॉमा या टेंस सिचुएशन से भी अपने आप को कामनेस की ओर लेके जाते हैं। और ये क्यों आता है? क्योंकि द ओनर एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट प्लेस इज वेरी स्पिरिचुअल। तो ये स्पिरिचुअलिटी ही क्लाइंट्स को भी स्पिरिचुअल बनाती है, सीरियसली। एंड सेकेंड थिंग कि भाई आपने वो पेन फेस किया अपनी लाइफ में, सो यू नो द पेन, यू नो द स्ट्रगल एंड यू नो एवरीथिंग कि भाई हम इस सिचुएशन से एटलीस्ट जो मेरी एक कम्युनिटी है फीमेल्स की या फिर जो मेरे लोग हैं, मैं उनको कैसे लेके आऊं। आप केयर करते हो अपने एम्प्लॉइज का भी, जो कि एक बिजनेस में बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई अगर आप अपने एम्प्लॉइज को केयर ना करो सो वो भी आपके साथ उतना अच्छा उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यू आर मेकिंग गुड रिलेशंस एंड अ डीप रिलेशन विथ योर क्लाइंट ऑल्सो, जो आपको रेगुलर रिकरिंग बिजनेस देते हैं जब आपका जो सीजन नहीं चल रहा होगा इन केस ऑफ, ठीक है। एंड यू आर हैविंग अ बेटर प्लेस, और ऐसी जगह पे आपका बिजनेस आपने इनिशिएट किया है जो पूरे पुणे मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव प्लेस है। तो भाई इतने और वो कॉम्पिटिटिव भी होगा
ऑब्वियसली बात है, जो इतनी जहाँ पर सबके पास बंच ऑफ, मतलब देखा जाए तो पैसे भर के हैं, कहाँ पार्क करें ये नहीं मालूम है जगह। हाँ मैं भाई ठीक है। तो कैश बहुत हो गया। हाँ, तो उस जगह पे ऐसे बिजनेस को इनिशिएट करना और उसको मेंटेन करना, इट इज टोटली अप टू कि भाई ये तो एक चैलेंज भी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और जैसे आपने खुद बताया अपने इस पॉडकास्ट में कि यार 6 महीने में बिजनेसेस बंद होते हैं और यू हैव सीन दोस थिंग्स Seen it. एंड यू आर स्टिल, इट्स 2 ईयर, Yeah. ठीक है। एंड यहाँ पर आप उस सिचुएशन में हो कि भाई अब हम और क्या कर सकते हैं। यू आर स्केलिंग इनटू अ फ्रेंचाइजी मॉडल, ट्रेनिंग सेंटर्स, यू आर ट्रेनिंग पीपल, यू आर ट्रेनिंग डिफरेंट अदर पीपल। तो भाई ये आपने 2-3 मॉडल ही बना लिए अपने बिजनेस के, एंड यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट मेक यू कि भाई ये बहुत एक बोलते हैं ना कि +1 का एक एडवांटेज देता है। तीसरी चीज अगर मैं और देखूं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो जहां पर आपने एक सेपरेशन देखा अपनी लाइफ में बहुत अर्ली स्टेजेस में। एजुकेशन कंप्लीट हुई, शादी करा दी घर वालों ने, ठीक है। आई एम नॉट ब्लेमिंग, पर हुआ क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम करते हैं भाई करता है। कि ठीक है, और कर लेनी चाहिए जिसने भी शादी की, इट्स नॉट Maybe it was destined, so ठीक है। पर उसके बाद भी निकल करके हम उस नेगेटिव सिचुएशन में बैठे नहीं रहे। हम उस एक बोलते हैं ना कि एक ट्रॉमा अगर हमें वो लूप से हमें लूप, बाहर आना हाँ, था। तो वो लूप में सिर्फ रहे नहीं, उस लूप से जैसे ही बाहर आए हमने इनिशिएट किया कि भाई मैं कहीं ऐसी जगह अपनी इस एनर्जी को, क्रिएटिव एनर्जी को कहीं लगाती हूँ। यू हैव डन दैट आल्सो। आपने मेंस वेयर, फिर उसके बाद सैलून, हर चीजों को ट्राई किया, अंडरस्टैंड किया कि भाई दीज आर द थिंग्स व्हाट इज मेंट फॉर मी, ठीक। देन यू कम अप विथ योर बिजनेस आइडिया। कुछ लोगों को आपने प्रपोजल भी भेजा, कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट भी किया, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया, बट कुछ जगह पे आकर के वो भी रुक गए। जहां पर की भाई फंडिंग की बात थी, वो दे रहे थे, वो फंडिंग आकर के रुक गई, आपके फ्रेंड्स जो आपको देने वाले थे। फिर वहां भी आपने हार नहीं माना कि भाई अब प्लानिंग हो गई है, चीजें होने वाली है, कुछ चंद पैसों की वजह से ये बिजनेस ना रुके, इसको कैसे इनिशिएट किया जाए। देन यू टुक योर ओन गोल्ड लोन। भाई एक लड़की के लिए गोल्ड उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी के लिए ठीक। सो गोल्ड मेक पीपल वेरी कॉन्फिडेंट, बट यू टुक अ लोन फॉर दैट ऑल्सो कि भाई मुझे अपना ड्रीम कम ट्रू करना है, तो आई टेक अ लोन। व्हाट मेक्स यू अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन कि भाई मैं अपने इस बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड यू हैव डन दैट Absolutely. ऑल्सो, Yeah. ठीक है। सो एज देखो, इन पॉडकास्ट व्हाट वी कैन केटर, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट वी कैन सी कि भाई एक्चुअली ये स्टोरीज मार्केट में आनी चाहिए। लोगों का स्ट्रगल नहीं दिखता है, लोगों को नहीं मालूम है कि मार्केट में कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस को कर रहा है। बट जब आप उसके जूते में अपने भी पाँव डालोगे ना, तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आई कांट से कि भाई मैंने वो स्ट्रगल्स देखे होंगे इस टाइप आपके बिजनेस में, पर when I feel it, then I can connect with you. And this is what I just meant to be कि भाई हम ऐसी स्टोरीज ऐसे बिजनेस ओनर्स को भी लेके आए अपने चैनल पे, whatever the business is, what kind of business these people are doing, but हम उनको लेके आए जो वाकई में स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। And who are really passionate about what they're हाँ, doing. and you are having that passion too कि भाई मुझे वो करना है, मैंने अपने उस लूप से बाहर आना था, मैं आ गई, अब उसके बाद मैं कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, दैट मेक यू डिफरेंट। देखो सभी वुमेन्स है, सब मेन है, ठीक है, पर जब आप एक डिसीजन लेते हो तो आप 50% अपने आप को ड्रास्टिकली चेंज करते हो, और जब उस डिसीजन के साथ आप उस पर लॉन्ग टाइम वर्क कर लेते हो, जैसा आपने बोला कंसिस्टेंसी। भाई है ना, मेरी एक फ्रेंड मुझे वही बता रही थी कि एक्चुअली यू वन ऑफ माय दोस्त फ्रेंड्स जिसने कुछ चालू किया है एंड यू आर स्टिल देयर। अदरवाइज पीपल आई हैव सीन वुमेन आल्सो हु हैव नॉट टेकन दैट वन स्टेप आल्सो टुवर्ड्स द बिजनेस, और जिन्होंने लिया है वो 6 महीने में 8 महीने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर दे हैव स्टार्टेड। हाँ कि भाई अब आपके स्टेज में भी आया होगा कि भाई पहले साल में तो बिजनेस अच्छे आ रहे होंगे, सेकंड ईयर में बिजनेस नहीं आ आई रहा टोल्ड यू होगा। इट्स सर्वाइवल। हाँ, तो Yeah. उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो? भाई उस समय बंद कर दे क्या?
Exactly. You have not taken the decision of shutting down Shutting the down. You have to be consistent. There's where the consistency plays a big role. तभी तो देखो, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं, तभी आपने ये फ्रेंचाइजी मॉडल इनिशिएट किया, ट्रेनिंग सेंटर लाया कि भाई सर्वाइवल के टाइम पे आप अपने बिजनेस को कैसे स्टैंड आउट करते हो, दैट मेक्स यू डिफरेंस विद अदर बिजनेस पीपल. Correct. एंड अगर वो ट्रिक एंड टिप्स नहीं है, तब तो भाई आप उस बिजनेस को स्टार्ट किए थे, नहीं चला बोल करके आप तुरंत बैकआउट कर रहे और फिर कोई दूसरी बिजनेस Then you're not passionate about what you're doing. इतना सिंपल है. Because when you put your heart into something, आप कुछ भी करके वो नैया पार करा ही दोगे कि नहीं हमें तो जाना ही है उधर, हम कैसे भी करके तूफान आ जाए पर हम जाएंगे. तो वही एक रीजन है कि दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अ लॉट इन टू द ह्यूमन लाइफ. कि भाई अगर मैंने सोच लिया ना कि मैं, जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं, सो मेरा 100% अटेंशन आप पे है, ठीक है, आपके इस टॉक पे है कि भाई आप तभी मैं इस बात को करते करते वहां तक जा पा रहा हूँ कि आपने कैसे सोचा होगा, किस तरीके से आप लेके आए हो और उस कम्युनिकेशन को कर रहा हूँ. तो आई ऑल्सो बिलीवर ऑफ दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. नहीं पर वही है ना कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है ना जीवन में, तो इट वॉज मेंट फॉर यू एंड आप में वो कैपेबिलिटीज है, तो हार मत मानो. अगर भगवान बोल रहे ना कि ये बिजनेस मैंने तुम्हें दिया है, तो क्लाइंट भी वही एक्चुअली लाके देगा. बट यू रियली हैव टू पुट योर एनर्जी इन इट एंड दैट टू गुड एनर्जी. ठीक है, हमें बैठ के लूटना नहीं है किसी को. नहीं, जो है वो ये है. ऐसा भी नहीं कर रहे भाई क्लाइंट आया तो इसी को काटो. हाँ, काटने वाला काम नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है. दैट्स क्वाइट ग्रेट ऑफ यू कि भाई बिजनेस को एथिकली करना है. एथिकली, ओ माय गॉड, एथिक्स आर सो इम्पोर्टेंट. एंड अगर वो आप में खुद में एथिक्स होते हो ना, तभी वो आपके बिजनेस में आप डाल सकते हो. इफ यू योरसेल्फ आर नॉट वेरी मच एथिकल, देन वो वही हो जाता है. नो, इट्स क्वाइट नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई फील कि भाई ऐसी स्टोरीज को हम और केटर कर पाए. और आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट लाइक यू एज अ बिजनेस वुमन कि भाई मैं बहुत कम बिजनेस वुमेन से मिला हूँ, ठीक, पर आई ट्राई टू कनेक्ट दोज पीपल ऑल्सो कि भाई जो लोग लाइफ में एक डेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, मेरा काम वही है, उन्हीं के साथ एक कम्युनिकेशन बनाना है और वो स्टोरीज लेके आनी है जो वाकई में मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे, क्योंकि आप लोग वो लाइफ को जी रहे हो भाई. And I just want to connect these things. So thank you for coming on this show and sharing all the minute things जो आपकी USP है से लेकर पूरी स्टोरी and very graceful कि भाई आपने बहुत शॉर्ट में और बहुत सलीके, बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपने चीजों को एक्सप्लेन किया. That's quite great of you. So thank you for coming on this show. Thank you so much. Thank you.